Hello buddies, how are you? Fine all of you. After completing the statistical data and lastly how to represent the given information in the graph, again we are moving toward one chapter which is related to graphical representation, and that is the linear equation. Okay. In ninth standard, you studied the linear equation in two variables, but one equation was only there, ax plus by plus c equal to 0. In this year, you are going to study the two equations like this way, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Okay, the solution of two equations you are going to find. First thing is that without solving the sum, how you are able to determine whether solution's graph is intersecting or it is parallel or it is the only single line. That much I am going to explain in this lecture. First thing is that, and after that three major part this topic is related, means three method you can solve the equation, that is the substitute method, elimination method and cross multiply method, and specific pattern of equations which are not in appropriate equations form, how to convert it in linear equation and how to solve it, and the last most important thing, how to make the problem sums, how to convert the problem sums into equation में problem sums को कैसे convert करना, that entire things you are going to learn in this chapter. So first thing is that you already studied, and so many times I explained you this, the difference between the equation and equality. Okay, so I am starting from there only, then we will move one by one. Suppose I am writing here 5 plus 3 equal to 8. Its left hand side is 5 plus 3, its right hand side is 8. So this type of pattern is called the equality. Is it clear? Now with this, suppose I am adding any alphabet. Suppose I have written here 5x plus 3y equal to 8. So it becomes equation. So that is the basic difference, first equation and equality. Once you get the equation, then automatically you have to find the value of x and y. आपको x और y की value find out करनी होगी. Is it clear? So that is the equation. So first of all, its standard form is ax plus by plus c equal to 0. Okay, and in that condition a and b, this two numbers should not be 0. ये 0 नहीं होने चाहिए, are not both 0. 0 नहीं होने चाहिए, दोनों 0 नहीं होने चाहिए. Is it clear? So every solution of the equation is a point on the line representing it. When you draw the entire solutions in the graph, at that time you will get the certain point in the graph, and when you join that line, then you will get the different solutions of linear equation, and you will get the line which you can present in the graph. Is it clear? And each solution of linear equation, that is x and y, of linear equation in two variables. Okay, two variable means one variable is the x and second is the y, and it is written ax plus by plus c equal to 0 cos
one to the point on the line representing the equation and vice versa. Means whatever line you draw and whatever solutions are coming there, okay, that you can represent in the graph. So in general form of its linear equation form is a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and second one is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Now when you draw the linear equation, then three possibilities are there. तीन संभावनाएं हो सकती हैं. फर्स्ट, या तो दोनों की दोनों लाइन कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में कट करेंगी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी. सेकेंड पॉसिबिलिटी, दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल जाएगी. व्हेन यू सॉल्व दिस, बोथ लाइन विल बी पैरेलल टू ईच अदर. एंड थर्ड, एक्स और वाई दोनों एक ही लाइन में रिप्रेजेंट होंगे. ओके, अब मान लो कि आपको बिना सॉल्व किए, इफ यू डोंट वांट टू सम द सॉल्व एंड यू वांट टू नो द रिजल्ट, कि क्या होगा. स्ट्रेट लाइन बनेगी, दो जगह पे एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही है, ये हो सकता है. या सेकंड, पैरेलल जाएगी दोनों लाइन, या फिर एक्स और वाई दोनों सेम है, एक ही है. हाउ यू आर एबल टू डिटरमाइन दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हियर. ओके, तो आपको ये अब सबसे पहले समझना है. सो फर्स्ट कंडीशन, and that's why I have written here the following possibilities can happen that given two lines in a plane. मतलब जब आप इन लाइन के सॉल्यूशंस प्लेन में ड्रॉ करोगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दोगे, तो ये तीन शक्यताएं हैं. तो पहली शक्यता क्या है? टू लाइन्स विल बी इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट ओनली. यानी दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में कट करेंगी. दैट इज द फर्स्ट. एंड इट विल बी लाइक दिस वे. ओके, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लाइक दिस वे. ओके, मीन्स इट विल कट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट. अब आपको उस कंडीशन में आप कैसे नक्की करोगे? तो व्हेन यू राइट दिस वन a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, सो इन दैट कंडीशन, उस परिस्थिति में आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने लिखा है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. बराबर? यानी कि ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगी. आप इतना ही सॉल्व करके अंदाज लगा सकते हो कि क्या सॉल्यूशन आएगा, किस तरह का ग्राफ बनेगा. Okay, so here I have written two line will intersect at one point only, have unique solution. अगर दो लाइन पर्टिकुलरली कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका सॉल्यूशन यूनिक, यूनिक मतलब सिर्फ एक और एक ही होगा, उसके अलावा दूसरा और कुछ हो सकता नहीं है. ओके, और उसको आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो. जब इसके सम्स आएंगे एट दैट टाइम आई विल शो यू दैट, मैं आपको दिखाऊंगा, सो यू विल गेट द आइडिया. बट बिफोर दैट दिस एंटायर थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड. तो मेहरबानी करके इसको बाद में लिख भी लेना इसको. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं देन नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन होगा नहीं. ओके, लाइक विल बी लाइक दिस वे. And how you will determine whether it has no solution or not? So a1 upon a2 equal to b1 upon b2 तो होगा, but they are not equal to c1 upon c2. तो ये इसके बराबर नहीं होंगे. आप इनकी वैल्यूज रखेंगे जब यहाँ पर, और ये सिचुएशन अगर आपको मिलती है तो डेफिनेटली देयर इज नो सॉल्यूशन एंड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. थर्ड सिचुएशन यू सी दैट टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक ही लदी हुई, मतलब एक ही लाइन, सिंगल लाइन इन द ग्राफ पेपर. सो द टू लाइन will be coincident, means x and y both are same, have infinite many solution. इसके अनगिनत सॉल्यूशन होंगे. आप अनकाउंटेबल हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में आप इनके सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो. ओके, इन दैट कंडीशन a1 upon a2
इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा। ओके, अब यहाँ से अब मैं आपको स्टेप टू स्टेप लेके जाऊंगा। फर्स्ट मैं आप लोगों को हाउ टू मेक द इक्वेशन, उसके अलग अलग पैटर्न्स हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। एज रिलेटेड होता है, बराबर है, ट्रैवलिंग रिलेटेड होता है, बराबर है, ऐसे अलग 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 पैटर्न के सम्स आपके बुक में दिए हुए हैं। ओके, तो उसका इक्वेशन कैसे बनाना पहले हम लोग वो सीखेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ग्राफ की मदद से हाउ टू डिटरमाइन वेदर सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये सीखेंगे हम लोग। उसके बाद में थर्ड स्टेप के अंदर मैं अलग अलग टाइप के सम्स दूंगा और आपको तीनों मेथड एक ही सम में आपको एट अ टाइम करके बताऊंगा मैं। सो यू विल गेट द आइडिया कि आप किसी भी मेथड को फॉलो कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड नो हियर हाउ टू मेक द इक्वेशन। मीन्स आपका जो इंटरप्रिटेशंस है रिगार्डिंग सम्स वो बहुत ही सिस्टमेटिक होना चाहिए। अगर आपका इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो गया देन इट राइज द प्रॉब्लम। सो फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर हाउ टू मेक द इक्वेशन विथ गिवन सम्स। दिए हुए प्रश्न की मदद से किस तरह से इक्वेशन को फ्रेम करना, ओके, दैट वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट। ओके, ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं अगला टॉपिक। नाउ सी दिस सम फ्रॉम 3.1। 3.1 का जो है आप फर्स्ट सम को अंडरस्टैंड करो, इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ये बोल रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब जो है अपनी लड़की को कहता है, क्या कहता है भाई, कि वो ये कह रहा है 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were। मेरी जो उम्र थी, बराबर, I was मतलब मेरी जो उम्र थी 7 times 7 गुना ज़्यादा, as old as you were, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र 7 टाइम ज़्यादा थी। यानी एक सिंपल एग्जांपल ले लो कि अगर जो है डॉटर अगर 7 ईयर की है तो उसके पिताजी उससे 7 टाइम यानी कि 7 7 जा 49 ईयर के थे। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ऐसे समझा रहा हूँ हम लोगों को। इफ डॉटर वॉज 7 years, बराबर, तो उस समय उसके पिताजी उससे कितने टाइम ज़्यादा थे, 7 टाइम ज़्यादा थे, यानी कि 7 7 जा 49। ओके, आगे उसने दूसरी कंडीशन दी है 3 years from now, आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be। 7 साल पहले बच्ची की उम्र से 7 टाइम ज़्यादा और 3 साल बाद यानी फ्यूचर में बच्ची की उम्र से 3 टाइम ज़्यादा। ओके, सो ये बोल रहे हैं रिप्रेजेंटिंग दिस सॉल्यूशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली प्रेजेंट करो। तो देखो कैसे इसको करना है। इज इट क्लियर? देखो अब ऐसे लिखेंगे, सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी X ईयर। आफ्ताब की प्रेजेंट एज
वो x ईयर है, बराबर। Therefore present age of his daughter equal to y year। अब मान लो मेरी अगर आज की उम्र बराबर है, अगर 25 साल है तो 5 साल पहले या 7 साल पहले मेरी उम्र कितनी होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू सबट्रैक्ट। मान लो अगर आज आप लोग 16 ईयर के हो तो 6 साल पहले आप कितने के थे, तो 16 माइनस 6। तो इसी तरह से अगर आज अगर ये x है या ये y है तो बिफोर 7 ईयर्स 7 साल पहले ये दोनों कितने के होंगे, समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि x से और y से हम लोग क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे, बराबर। Therefore 7 years ago age of Aftab equal to x minus 7 year and age of daughter y minus 7 year। yes, अब as per given first condition, क्या कंडीशन दी है, क्या बोला उसने, 7 साल पहले, बराबर है, मेरी उम्र बेटा तेरी उम्र से 7 टाइम ज्यादा थी। सो एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू 7 इंटू एज ऑफ डॉटर। ओके, अब एज ऑफ आफ्ताब कितनी है, x माइनस 7 इक्वल टू 7 y माइनस 7। इज इट क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। ओके, क्योंकि 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आया, इसको अगर शफल करते हो आप तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। इज इट क्लियर। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 में इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा, 42। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अगर आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो यू कैन राइट लाइक दिस में, x माइनस 7y प्लस 42, क्योंकि इधर आ गया इक्वल टू 0। ये इस तरह से आपका पहला इक्वेशन बना बच्चों। इज इट क्लियर। ठीक है, अब आगे देखो जरा। अब अगला क्या बोला है उसने, बिफोर सॉरी आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 टाइम हो जाऊंगा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज योर after 3 years
the age of आफ्ताब इक्वल टू x प्लस 3 ईयर, बराबर है, क्योंकि फ्यूचर प्रेजेंट अगर आज मैं 25 साल का हूँ तो 3 साल बाद 25 प्लस 3 28। सिमिलरली अगर आज आफ्ताब x ईयर का है तो आफ्टर 3 years व्हाट विल हिज एज, सो x प्लस 3 ईयर। आफ्टर 3 years द age of equal to y plus 3 year. Okay, as per given condition. As per given condition, क्या कंडीशन दी है? एज पर गिवन कंडीशन। अब कंडीशन ये दी है कि भाई मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 3 गुना ज्यादा होगी, एज पर गिवन कंडीशन सेकेंड। ओके, एज पर गिवन कंडीशन सेकेंड। तो सेकेंड कंडीशन क्या है? एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू 3 एज ऑफ डॉटर। आफ्ताब कितने के हैं? x प्लस 3। डॉटर कितने की है? 3 टाइम है। अब इसको सेट करते हैं अपन लोग, तो x प्लस 3 इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे तो 3y प्लस 3 3 सा 9 और x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3। सो डेफिनेटली x माइनस 3y इक्वल टू 6। ओके, अब इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपको ये दो इक्वेशन मिले, आपको सिर्फ इक्वेशन मिले हैं बच्चों। नाउ यू हैव टू डिटरमाइन वेदर दिस इक्वेशंस आर विच काइंड ऑफ इक्वेशन, ओके, एंड व्हाट विल बी देयर सॉल्यूशंस, क्या होंगे। लेट्स टॉक अबाउट दैट। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, बराबर है। चलो अब इसको देखते हैं। नाउ यू गॉट 2 सॉल्यूशंस हियर, आपको ये दोनों सॉल्यूशन मिल गए। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है इसके बाद में, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब हमको अगर ये अंडरस्टैंड करना है, बराबर है, तो जस्ट ओरली आपको अंडरस्टैंड करना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो आप जो है यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -7 एंड c1 इक्वल टू प्लस 42 है। सिमिलरली a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू -3 एंड c2 इक्वल टू -6 है। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, यू आर नॉट सपोज टू डू व्हेन यू सॉल्व दिस, ठीक है। अब आप इसके ऊपर से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका ग्राफ कैसा बनेगा, हाउ योर ग्राफ विल बी, ओके। अब अगर आप यहाँ पे लिखो ऐसे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो a1 देखो जरा दोनों में a1 और a2 क्या है, 1/1 इक्वल टू b1 is -7 and b2 is -3 equal to c1 is 42, ओके। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको भूल जाओ, अभी c1 वाले को आप भूल जाओ
और यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है। अब अगर ये इक्वल नहीं है तो आपका सोल्यूशन क्या होगा? ओके, इफ इट इज नॉट इक्वल तो एग्जैक्टली वन यूनिक सॉल्यूशन, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि ये ग्राफ अगर आप ग्राफ पेपर में ऐसे कहीं ड्रॉ करोगे तो अब मुझे नहीं मालूम, जस्ट आई एम टेलिंग यू, ये ऐसे कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में आपको करते हुए दिखेगा। नाउ हाउ टू डू इट, अब इसको कैसे करना उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, चलिए आगे और इसको वर्क कर लेते हैं। अब उसने बोला एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व करो, तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए तीन मेथड में से कोई भी एक मेथड चूज कर लेता हूँ। मैं इसको जो है एलिमिनेशन मेथड से कैंसिल सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब एलिमिनेशन मेथड का पंगा ये है ओके कि ये जो दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, इसमें से किसी एक को अपने को कैंसिल करना होता है। First thing is that either x or y we have to eliminate one variable, and when we do that, at that time we have to keep one thing in our mind, that both variables should be same and sign should be opposite. Here you can see this both are same but sign are not opposite, so we will make the opposite sign. See here nothing is there, so we will write a minus, this is minus, this is plus, this is minus, this is plus. Is it clear? Now cancel this one. Now see here, minus 7y and 3y. So 7y minus 7 and plus 3, that is minus 4y. Okay, and this one plus 48 equal to 0 है ना, 42 और 6 48। Therefore minus 4y equal to minus 48, ये इधर सफल हो गया, माइनस माइनस कैंसल, सो y equal to 48 upon 4, y equal to हमने डॉटर की उम्र y अज्यूम की थी, देयरफॉर एज ऑफ डॉटर इक्वल टू 12। इज इट क्लियर? देयरफॉर एज ऑफ फादर, कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे बच्चों, ये वाला सेकंड वाला इक्वेशन ले लेते हैं, उसके लिए ऐसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y equal to 12 in equation number 2 and write it, x minus 3y equal to 6। ओके, माइनस 6 था, इधर लेके आने के लिए प्लस हो गया, x minus 3 into 12 equal to 6, x minus 36 equal to 6, x equal to 6 plus 36, x equal to 42। बराबर है, x equal to कितना हो गया 42, यस 42। ठीक है, तो ये आफ्टर की प्रेजेंट एज हुई, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्टर। देयरफॉर एज ऑफ फादर इक्वल टू 42 ईयर, 42 साल। ओके, सो लाइक दिस वे you have to do it geometrically। आपको ये geometrically जो है ऐसे करना। ग्राफिकली कैसे करोगे? ग्राफिकली इसको जो है बहुत ब्रॉड आपको जो है करना पड़ेगा। आई एम शोइंग यू ऑलरेडी, यू हैव डन दिस वन इन 9th स्टैंडर्ड, बट अगेन
आई एम रिकॉलिंग यू विद द हेल्प ऑफ दिस सम। देखो ग्राफिकली अब देखो बच्चों, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर आप लोगों को अंडरस्टैंड करना हो तो मैंने यहाँ पे जो है ये दो इसके जो है वेरिएबल लिए, फर्स्ट वाला लिया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और दूसरा x माइनस 3y इक्वल टू 6। जैसे हम लोग 9th स्टैंडर्ड में करते थे, हमने ब्लॉक बनाया एंड ऑलरेडी आई हैव रिटन हियर द वैल्यू ऑफ 10 एंड 12। दो वैल्यू मैंने ले लिया। अब आप लोग बोलोगे सर आपने इतने बड़े नंबर क्यों लिए? बिकॉज अगर मैं छोटे नंबर जब ले रहा था, बिकॉज आई हैव ऑल्सो ट्राइड दिस, तो जब मैंने छोटे नंबर लिए बच्चों तो ग्राफ बहुत बड़ा बन रहा था, आपके बुक में भी नहीं आ रहा था। तो इसके लिए आपके बुक के अंदर आपके पेज में आया है, उसके लिए मैंने थोड़े बड़े वैल्यू लिए और x की और y के वैल्यूज को भी मैंने यहाँ पे चेंज किया है। आई एम गोइंग टू शो यू दैट। तो पहले ये देख लो यहाँ पे कि x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y, तो y की वैल्यू मैंने यहाँ पे कितनी ली? 10 ली मैंने, y equal to 10. So instead of y I have written 10, 10, 7 is 70. 70 में से 42 लेस किया तो 28 आया। देखो 10 में से 2 लेस करेंगे 8 और इधर 6 में से 4 लेस करेंगे तो 2, 28 ये आया। दूसरी वैल्यू मैंने y की यहाँ पे 12 7 से 84 में से 42 लेस किया मैंने। ओके, सो 4 minus 2 2 and 8 minus 4 42। तो x की वैल्यू यहाँ पे 42। Similarly, I have taken second equation x minus 3y equal to 6. So x equal to 6 plus 3y. Now here I have taken the value of y 3 and 8 respectively. 3 3s are 9. 6 plus 9 15. So x value is 15. Similarly, another value I have taken 8. 8 3s are 24. 24 plus 3 30. X value is 30. Now I have drawn here graph. मैंने इधर ग्राफ बनाया, जरा आप लोग देख लीजिए इसको। थोड़ा मैं इसको ब्रॉड भी कर देता हूँ, सो यू विल गेट बेटर वे। ओके, सी नाउ देखो, I have drawn here, this is your x axis and this is your y axis and this is 0. अब all numbers are positive, so I have taken only one quadrant, बाकी को मैंने ड्रॉ नहीं किया है यहाँ पर। ओके, in x axis I have taken 1 centimeter equal to 5 year, तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 and 50। and in y axis वहाँ पे मैंने लिया 1 centimeter equal to 3 year। नहीं तो ये ग्राफ ही सेट नहीं हो रहा था, बहुत बाहर जा रहा था। ओके, ठीक है। So 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 and 24. Now see there, 28 and 10. So definitely 28 and 10. 25. You see this is 28 and 9 के बाद में इधर 10. तो ये एक ब्लॉक मिला। ये वाला पॉइंट। And second 42 and 12, 42, 40 के बाद में 41, 42 and this one is 12 y axis. So this is your 42 and 12, यही कॉम्बिनेशन आएगी। देखो दूसरा और कुछ नहीं आने वाला है। Is it clear? अब इसको जब मैंने स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ किया तो दिस लाइन हैज कम लाइक दिस वे, x minus 7y equal to 42. Okay. Now see next one, this one. Okay. This is x is 15. So this is x is 15 and y is 3. It is here 3. Okay. So this is 15 and 3. And second x is 30. And y is 8, 6, 7, 8. Okay. यहाँ और जब मैंने इसको एक्सटेंड किया तो देखो यहाँ पे 42 में somewhere else और यहाँ पे 12 में ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि जो पिताजी की उम्र हमने x एज्यूम की थी वो 42 है
और डॉटर की उम्र हम लोगों ने कितनी अज्यूम की थी, 12 अज्यूम की थी, बराबर। तो यहाँ पे इसी जगह पे कट करेंगे, थोड़ा सिस्टमेटिकली यहाँ पे जो है नहीं बनेगा क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, बट व्हेन यू विल ड्रॉ इन ग्राफ पेपर यू विल गेट द एग्जैक्ट पोजीशन एंड सेम वे यू हैव टू ड्रॉ इट, आपको ऐसे ही करना है। से इट प्रॉपरली, एक बार देख लीजिए जरा ढंग से। आई होप सो यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट, आपको समझ में आया होगा ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं इसको। एंड हियर इन 3.1 2 and 3 sums are there, you try to solve it your own, and after that in next topic I already explained you, so directly we will start the sum in 3.2. okay, see